Hello everyone, good morning. Can you guys hear me? Hello. Not able to hear me? Sangamitra, yes sir. You need to speak up, okay? We need to communicate. Deepak, thank you, but let's make it two-way communication, okay? Right. So let's begin with your introduction first. I want to know your background. Like, what are you doing right now? Are you working or are you studying? Okay. And what is your motivation to learn data analytics? Can we start with Barsha? Can you please tell me, like, where are you from and what exactly are you doing? If you are having some experience, what kind of experience you are having? Manisha, can you start? Anyone? Hello? Yes, sir. Can I start? Yes, please. Good morning, sir. My name is Deepak Brahma. Mm-hmm. I am from Bhubaneswar. Mm-hmm. Uh, I am working in ICFI Business School, Hyderabad, in branch office in Bhubaneswar. Okay. I am a working professional. I have 6 years of work ex in academic counselor. That's all. Okay. Okay, okay. So what exactly you do as a means do you use any kind of tools like Excel or something? Yes, sir. I am using Excel, Mhm. PowerPoint. You're using Power BI as well? Using. Sorry? You're using Power BI as well? No, sir. No, sir. Okay, okay. So you want to learn this one like in ICFI itself you have an opportunity or you're looking for an opportunity outside? Yes, sir. I am looking for non-IT to switching IT career. Okay, very good. Thank you, Deepak. Yes, sir. Anybody else? Anyone else, please? Manisha, Meera, Pratisruti, Sangamitra, Ajay, Tapon, Gautam, Jyoti, Pritam. Guys, we need to speak up, okay? देखो, when you are looking for a job in data analytics, no, it is 30 to 40% only will be your technical skills. Okay, remaining 60% हमें बात करना ही पड़ेगा. No other option. आपको मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम में बात करना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने के लिए बात करना पड़ेगा, डेमो देने के लिए बात करना पड़ेगा, नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए बात करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर से बात करना पड़ेगा, आपका डेटा इंजीनियर के साथ बात करना पड़ेगा. यू हैव टू टॉक एंड आई हैव नॉट asked you anything complicated. I just asked you कि आपका बैकग्राउंड क्या है, what you are doing right now, and what is your motivation to learn data analytics. This is not at all any मतलब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ. राइट? Sir, can I ask some यस, question? यस प्लीज. Sir, I am a BA background. Can I हम्म. switch data analytics Yeah, to see, grow this my is a career? yeah, this is a field where skill only matters. Okay, आईटी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, दे आर नॉट लुकिंग इनटू मतलब आपका डिग्री क्या है और हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड. दे आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू दैट वन. देयर मेजर गोल इज कि आई हैव ए प्रोजेक्ट, मेरे पास एक काम है. ओके, उसके लिए मुझे एक रिसोर्स चाहिए. क्या आप वो रिसोर्स हो? कैन यू डू यू हैव द स्किल टू कंप्लीट दैट वन? वो प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास स्किल सेट है या नहीं? दैट इज द ओनली गोल दे वांट. बिकॉज आईटी में क्या होता है, देर विल बी समथिंग कॉल्ड क्लाइंट. ओके, देर विल बी समथिंग कॉल्ड पेरोल कंपनी. ओके, लेट मी ट्राई टू शेयर माई स्क्रीन एंड एक्सप्लेन. सर, क्या पोजीशन मैटर करता है? जहाँ पे करेंटली अभी जॉब कर रहा हूँ, तो पोजीशन वहाँ पे मैटर करेगा? मतलब यू आर सेइंग आपका रोल अभी वो नहीं है तो मैं कैसे स्विच करूँ? दैट इज योर क्वेश्चन. यस सर, यस यस सर. सी, जस्ट टू टेल यू, मेरा रोल जो था इनिशियल, ओके, स्टार्टिंग 3 years ऑफ माय करियर आई वाज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग. आई वाज इनटू बी टू बी सेल्स. ठीक है. यस सर. एक्चुअली ए- सर, मेरा भी वही है, हम्म. मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. सो करेक्ट. सी, या. बट स्टिल आई वाज एबल टू चेंज माय रोल. कैसे चेंज किया? या. जस्ट बाय acquiring the skills and we will present it in that way. देख, आप इक्फाई में हो, ओके. इक्फाई is यस having सर. so many branches all over the country, right? यस सर.
Yes, sir. हैदराबाद का मेन कैंपस है, उसके बाद पुणे में है, बैंगलोर में है, जयपुर में है। Yes, sir. Yes, sir. There are मोस्ट ऑफ द nine campuses overall in 9 campuses are there. Okay, so Yeah. what you need to project yourself, आपको क्या प्रोजेक्शन करना पड़ेगा कि इक्फाई में आई वाज ए डेटा एनालिस्ट विच, मैं क्या कर रहा था कि स्टूडेंट्स का डेटा, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा मेरे पास आ रहा था फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। उसको मैं एनालाइज करके आई यूज टू गिव इट टू माय टीम, मतलब जो लीडरशिप टीम है उनको मैं दे रहा था कि इतने लोग, दीज आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, दीज आर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट, मे बी प्लेसमेंट रिलेटेड डेटा मैं एनालाइज कर रहा था। इतने सारे कंपनीज हमारे पास आ रहे थे जिसमें से दे वर लुकिंग फॉर, मतलब ज्यादातर रोल सेल्स में आ रहे थे या फाइनेंस में आ रहे थे। ऑल काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस आई वाज डूइंग एंड देन आई वाज गिविंग ए रिपोर्ट टू माय लीडरशिप टीम। वो Yes, sir. लीडरशिप टीम मैंने जो रिपोर्ट बनाया है उस रिपोर्ट को लेके दे यूज टू मेक डिसीजन फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो वी नीड टू प्रोजेक्ट आवर सेल्फ इन सच ए वे, इवन दो आई वॉज डूइंग एकेडमिक काउंसलर काइंड ऑफ रोल, but still one part of my work was to analyze the data, to create the report and to give it to the leadership team, and those people used to look into my report and make decision making for the growth of equi. In that way we need to present. So, good morning, guys. Just to add a little, actually, जनरली आईटी में क्या होता है, मोस्ट आई मीन 50% ऑफ द ट्रांजिशंस दे आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। मतलब कोई बीपीओ में कर रहा है, कोई सेल्स में कर रहा है, कोई डेटा एंट्री कर रहा है। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, मैं क्विक एक छोटा सा मतलब शॉर्ट एग्जांपल दूंगा। जब टेक महिंद्रा में काम कर रहा था, वी टेक महिंद्रा का आपको पता होगा, बीपीओ भी है, राइट? बीपीओ भी है और टेक्नोलॉजी टेक टेक भी है। तो बेसिकली हमें अपने टीम में क्या हुआ कि दो ऑटोमेशन टेस्टर का रिक्वायरमेंट था। तो पहले क्या करते हैं, कंपनी में इंटरनल रिसोर्स को देखते हैं कि कोई बंदा खाली है क्या, प्रोजेक्ट से रिलीज होके खाली बैठा है, उसको यूटिलाइज करेंगे, नहीं तो बाहर एक्सटर्नल हायरिंग पे डालेंगे। ठीक है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जब वो पोस्ट आईजेपी आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनल जॉब पोस्टिंग एक होता है, वो वहां पे क्या होता है कि बंदे इंटरनली ढूंढते हैं कि हाँ, ये बंदा अगर अवेलेबल है तो प्रोजेक्ट में उसको ऑनबोर्ड करो। तभी क्या हुआ, ये मेल सबके पास जाता है, बीपीओ के पास जाता है, बीपीओ वालों के पास जाता है, टेक्नोलॉजी वालों के पास जाता है, हर एक टीम के पास जाता है। तो अपने पास दो प्रोफाइल आया, जो बीपीओ में काम कर रहे हैं, बट वो ऑटोमेशन टेस्टिंग उनको अच्छे से आता है, जावा वगैरह अच्छे से उन्होंने कोर्स वगैरह किया था। तब तब हमने अपने को वो प्रोफाइल आया, तो हमने वो इंटरव्यू, वो शेड्यूल हुआ, हमने वो दो बंदों को इवेलुएट किया। तो हमने जो जो क्वेश्चन पूछा, प्रोजेक्ट रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उनको सब कुछ है। बेसिकली दे आर एबल टू आंसर ऑल आवर क्वेश्चंस। सो एक्सपेक्टेशन एकदम जो था उससे बेटर थे कैंडिडेट्स। ठीक है। तो हमने डिसाइड किया हम वो रिसोर्स को हायर कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ, उनका जो शिफ्ट हुआ, बीपीओ से शिफ्ट हो गया टेक्नोलॉजी साइड। तो देन प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बन गए और ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट में काम किया। तो टेक महिंद्रा को क्या बेनिफिट हुआ, अगर वो एक्सटर्नल रिसोर्स हायर करेगा तो 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए बंदे 8-9 लाख पे आएंगे। अभी बीपीओ वाले 2-2.5 लाख ऑलरेडी उनको मिल रहा है, तो उनको ये प्रोजेक्ट में डाल दिया, उनको कॉस्ट का बेनिफिट हुआ। तो बेसिकली वो बंदे, उनका क्या बेनिफिट हुआ, थोड़ा बहुत काम सीखने के बाद वो स्विच करके निकल गया। तो ट्रांजिशंस जनरली वैसे ही होता है, जो अपने पास भी इन टैलेंट ऑल्सो देयर आर मेनी, आई मीन स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम सपोर्ट, कोई सेल्स, कोई इवन कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट बैकग्राउंड से आके भी उन्होंने सक्सेसफुली करियर ट्रांजिशन किया, बिकॉज दे हैव बिकम वेरी गुड इन स्किल्स। जो प्रोजेक्ट्स काफी, जो सुजीत सर जो सेशन ले रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छे से उनको इवन इतना कॉन्फिडेंट बूस्ट किया कि 100 लाइन का डैक्स वो लिख पाए, और एडवांस लेवल का फॉर्मूला, एडवांस लेवल का एसक्यूएल क्वेरी, ये हर एक चीज उनको हमने इतना ट्रेन किया। तो वो कॉन्फिडेंस और स्किल के वजह से ही दे आर एबल टू जस्टिफाई 2 इयर्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस। अभी वो इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं और सस्टेन भी कर रहे हैं अच्छा पैकेज में। इवन पीपल मतलब 13-14 लाख 15 लाख, जो कि दोज वर्क फ्रॉम प्योरली नॉन टेक बैकग्राउंड। अब बीटेक छोड़ ही दो, बीटेक एमसीए बीएससी आईटी छोड़, लिटरली पीपल फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, सिविल बेसिकली बी फार्मा बीबीए, वो जो बिल्कुल आईटी से उनका कुछ मतलब लेना देना ही नहीं है, दे हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली ट्रांजिशन देयर करियर टू डिफरेंट फील्ड्स। ओके, उसका कोई टेंशन, आप अगर स्किल्स एक्वायर करते हो तो आई मीन कोई सवाल ही नहीं, आप ट्रांजिशन नहीं कर पाओगे। बस आपको इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करना है और रोल्स को कंप्लीटली अलाइन कर देना है। मतलब जो आपका करंट जॉब रोल है उसको चेंज करके डेटा एनालिटिक्स का रोल में आपको अलाइन करना है। ठीक है सुजीत सर, आप कंटिन्यू कर सकते Yes, sir. Yeah.
तो बेसिकली क्या होता है आईटी में, व्हाट हैपेंस इज व्हाई दे लुक ओनली फॉर स्किल्स इज, आईटी में क्या होता है, देर विल बी समथिंग कॉल्ड पेरोल कंपनी, देर विल बी समथिंग कॉल्ड क्लाइंट कंपनी। सर थोड़ा जूम इन कर दीजिए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपने, यू हैव वी हैव ट्रेन्ड यू, टैलेंटल ने आपको अच्छे से ट्रेन किया है, उसके बाद आपने जॉब पोस्टिंग में अप्लाई किया है, बहुत सारे कंपनी से कॉल आएंगे आपको, यू गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द कंपनी, आपका फॉर एग्जाम्पल यू गॉट सेलेक्टेड फॉर, दिस इज यू, ओके, यू गॉट सेलेक्टेड फॉर ए कंपनी, फॉर एग्जाम्पल आप टीसीएस के लिए यू हैव सेलेक्टेड, टीसीएस ने इंटरव्यू कंडक्ट किया, यू हैव अटेंडेड द इंटरव्यू एंड यू हैव क्लियर द इंटरव्यू। तो आप अभी क्या हो, टीसीएस के पेरोल में हो, पेरोल में हो मतलब क्या है, टीसीएस इज गोइंग टू पे यू सैलरी, राइट, बट आप एक्चुअली वर्क आप टीसीएस के लिए काम नहीं करोगे, ओके, आप किसके लिए काम करोगे, टीसीएस के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, ओके, टीसीएस के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेस्ले है, देयर कैन बी सम कस्टमर कॉल्ड पेप्सिको, देयर कैन बी सम कस्टमर कॉल्ड एनिकेन, ओके, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, स्टार हेल्थ हो गया या फिर मारुति सुजुकी हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनके कस्टमर टीसीएस होता है, सिर्फ टीसीएस ही उसका टीसीएस का कस्टमर ये नहीं होता है, देयर कुड बी सम अदर कंपनीज ऑल्सो, आईबीएम हो गया, विप्रो हो गया, दीज आर ऑल सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो जब इसके साथ आप व्हेन यू जॉइन दिस कंपनी, तब क्या होगा, अभी नेस्ले का या पेप्सिको का या हेनिकेन का, किंगफिशर का, ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जहां से रिक्वायरमेंट आता है कि हमारे पास डेटा है, बहुत सारा डेटा है, उसको एनालाइज करके हमें डिसीजन मेकिंग करना है, तो एनालाइज करने के लिए वी नीड डेटा एनालिस्ट, ओके, हमें डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो टीसीएस को पूछेगा कि आप डेटा एनालिस्ट हमको दे सकते हो क्या, अगर दे सकते हो तो कितना चार्ज करोगे, एक डेटा एनालिस्ट के लिए मुझे दो डेटा एनालिस्ट चाहिए, एक सीनियर चाहिए एक जूनियर चाहिए, ओके, एक जूनियर एनालिस्ट चाहिए और एक सीनियर एनालिस्ट चाहिए। तो आपका टाइमिंग क्या रहेगा और आप कितना चार्ज करोगे, बेसिकली आप कितना चार्ज करोगे। तो टीसीएस बोलेगा कि हम लोग जूनियर डेटा एनालिस्ट के लिए मे बी $18 पर आवर, $18 पर आवर, हाँ वी विल चार्ज, वेर एज सीनियर के लिए मे बी $25 पर आवर वी विल चार्ज, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। आईबीएम क्या करेगा, आईबीएम के पास भी होगा जूनियर एनालिस्ट और सीनियर एनालिस्ट, आईबीएम के पास भी होगा, बट आईबीएम बोलेगा कि मैं यहाँ पे आई विल, जूनियर के लिए ही मैं $25 चार्ज करूंगा, सीनियर के लिए मैं $35,000 चार्ज करूंगा पर आवर, ओके। और एक कंपनी कोई एक्स वाई जेड, एक छोटा सा स्टार्टअप कंपनी है, सम स्टार्टअप कंपनी इज देयर, उसके पास भी एनालिस्ट है, तो ही में से कि मैं सिर्फ $10 चार्ज करूंगा जूनियर के लिए और सीनियर के लिए मे बी $15 मैक्सिमम, इतना ही चार्ज करूंगा, लाइक दिस दे विल गिव द कोटेशंस, ओके, नेस्ले के लिए कोटेशन टीसीएस से जाएगा, आईबीएम से जाएगा, एक्सवाईजेड कंपनी से, ऐसे बहुत सारे कंपनी से कोटेशन जाएगा। नाउ नेस्ले का लीडरशिप टीम, दे विल फाइनलाइज वन वेंडर, ये सब इनके लिए वेंडर्स है, दे विल फाइनलाइज वन वेंडर कि हमें किन के साथ जाना है, टीसीएस कम चार्ज कर रहा है, आईबीएम थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहा है, एक्सवाईजेड बहुत कम चार्ज कर रहा है, बट देयर इज ए प्रॉब्लम, अगर हम ये कम चार्ज कर रहा है करके इसके पास जाएंगे और ये अच्छे से हमें डिलीवर नहीं कर पाया, देन इट इज ए प्रॉब्लम, अगर टाइम पे हमें रिपोर्ट नहीं देगा देन इट इज ए प्रॉब्लम, सो मे बी इसका ब्रांड नेम इतना नहीं है, सो मे बी वी शुड नॉट गो विद दिस गाय, मे बी इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों में से मे बी टीसीएस इज बेटर फॉर मी, सो नेस्ले क्या करेगा, टीसीएस को अप्रोच करेगा, बोलेगा कि हाँ हम प्रोजेक्ट आपको देंगे, आप हम लोग हम हमारे लिए एक जूनियर एनालिस्ट और एक सीनियर एनालिस्ट के रिसोर्सेज भेजो। तो आप जब टीसीएस में ज्वाइन हुए हो, आपके पास कोई भी काम नहीं है, आप कहाँ पे हो, आप बेंच पे हो, बेंच पीरियड होता है, जब तक आपको प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता है आप बेंच पीरियड पे होते हो। जैसे ही नेस्ले से एक प्रोजेक्ट मिलता है तो टीसीएस क्या करेगा, आपके जैसे बहुत लोग हायर हुए होंगे, राइट,
टीसीएस में बहुत सारे बच्चे हायर हुए होंगे, तो इन तीनों को, फॉर एग्जांपल 3 मेंबर्स आर देयर बेंच पे, इन तीनों को नेस्ले का इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। सो नेस्ले से एक टेक्निकल टीम आके आपका इंटरव्यू लेगा, आपका लेगा, आपका कोलिग का लेगा, जितने लोग हैं, जितने लोग को टीसीएस ने भेजा है उन सबका इंटरव्यू लेगा, मे बी 3 4 या 5 6 जितने भी होंगे इंटरव्यू लेगा। उसमें से उसका रिक्वायरमेंट के लिए हु इज द बेस्ट कैंडिडेट, इन तीनों में से हु इज द बेस्ट कैंडिडेट नेस्ले विल सेलेक्ट। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट इंटरव्यू बोलते हैं, क्लाइंट राउंड। ओके, अगर आपने क्लाइंट राउंड क्लियर कर दिया तो आप क्या करोगे, आप जाके नेस्ले के लिए, नेस्ले के डेटा के ऊपर काम करोगे। अगर आपका क्लाइंट राउंड क्लियर नहीं हुआ, आप स्टिल बेंच पे ही रहोगे जब तक कोई दूसरा कंपनी फिर से टीसीएस को रिक्वायरमेंट नहीं देता है। फिर पेप्सिको से रिक्वायरमेंट आएगा, फिर से आपको पेप्सिको को, अगर बेंच पे हो आप, पेप्सिको के पास इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। जब तक आप क्लाइंट राउंड क्लियर नहीं करते हो, आप तब तक बेंच पे रहोगे। जब आप क्लाइंट राउंड क्लियर करोगे, तब जाके आप उस क्लाइंट के लिए काम करना शुरू करोगे। तो क्लाइंट क्या करेगा, आपको काम देगा एंड यू विल बी वर्किंग फॉर नेस्ले। नेस्ले क्या करेगा, टीसीएस को $18 $25 पे करेगा पर आवर। आपका बिलिंग, इसको क्या बोलते हैं, आपका बिलिंग, बिलिंग टाइम होता है। तो जब आपका बिलिंग हो रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ यू टीसीएस इज गेटिंग मनी फ्रॉम नेस्ले। सो $18, फॉर एग्जाम्पल यू आर ए जूनियर डेवलपर, तो आपके नाम पे $18 टीसीएस इज गेटिंग फ्रॉम नेस्ले। टीसीएस क्या करेगा, ये $18 में से मे बी $5 और $6 दे विल गिव इट टू यू। ओके, ये आपको पता नहीं होता है कि कितना नेस्ले टीसीएस को दे रहा है, आपको कौन सैलरी देगा, टीसीएस सैलरी देगा। सो टीसीएस क्या करेगा, जितना भी अमाउंट मतलब नेस्ले से आ रहा है उसमें से थोड़ा बहुत कमीशन अपने पास रखेगा, और बाकी का पैसे ही विल गिव इट टू यू। दिस इज हाउ द आईटी मॉडल वर्क्स। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? दीज आर कॉल्ड सर्विस बेस्ड कंपनी, इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप ही इसका प्रोडक्ट हो। ओके, एम्प्लॉयज Yes, आर sir. इट्स Understood. प्रोडक्ट्स। या दीपक टेल में। Yes, sir. Understood. Okay. What about others? गाइस, और Complete. किसी का कुछ क्वेश्चन है इन जनरल बिफोर वी स्टार्ट द सेशन? द आई मीन शो द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डिफरेंट करियर, डिफरेंट रोल्स इन डेटा। किसी का कुछ क्वेश्चन? आप साइलेंट, आप सब लोग साइलेंट बैठे हो, कैसे चलेगा? मनीषा, मीरा, संघमित्रा, अजीत, अनुराग, कुछ क्वेश्चंस है गाइस? हेलो हाँ, बोलो। सर, मतलब बेंच पीरियड में जो रहा उसका तो लॉस होगा ना, मतलब नेस्ले नेस्ले अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है बेंच पीरियड वाले लोगों को तो दोनों का प्रॉफिटेबल होता है, और टीसीएस के थ्रू करने से तो लॉस हो रहा है ना। हाँ, क्यों हो रहा है, नेस्ले डायरेक्टली, मतलब अगर डायरेक्टली नेस्ले हायर करेगा, आप बोल रहे हो अगर डायरेक्टली नेस्ले इसको कैंडिडेट को हायर करता है, देन इट इज प्रॉफिट फॉर देम, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू टीसीएस, राइट? यस सर। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करो, आपको, यू वांट टू बिल्ड ए हाउस। ओके, एक हाउस आपको बिल्ड करना है, तो आप क्या करोगे, एक मतलब बिल्डर के पास जाओगे या फिर समबडी नोन कंपनी, आप बड़ा सा है, छोटा सा नहीं, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, यू विल गो एंड फाइंड समबडी, इंटीरियर करना है, फॉर एग्जांपल इंटीरियर का काम करवाना है आपको, तो यू विल ट्राई टू फाइंड समबडी हु हैज ऑलरेडी प्रूव्ड कि इंटीरियर स्पेस में उसने अच्छा काम किया है। आप उसके थ्रू जाओगे और उसको, ही विल ब्रिंग हिज रिसोर्सेज, उसके कारपेंटर वारपेंटर वो लोग लाएंगे एंड वो लोग काम करेंगे, आप उसको पैसा दोगे, वो अपना एम्प्लॉयज को पैसा देगा। दैट इज व्हाट इट हैपेंस। वाई वी आर नॉट डायरेक्टली हायरिंग पीपल, क्योंकि हमें पता नहीं है, राइट? उसके बाद आपका इतना भी ज्यादा काम नहीं, एक बार आपका इंटीरियर काम हो गया, तो अगर आप डायरेक्टली एम्प्लॉय को हायर करते हो तो उसके बाद क्या करोगे, राइट? सिमिलरली नेस्ले क्यों डायरेक्टली नहीं लेता है, क्यों इट गोज थ्रू सर्विस बेस्ड कंपनीज, क्योंकि अगर नेस्ले डायरेक्टली हायर करता है, किसी को डायरेक्टली हायर करता है, फॉर एग्जांपल नेस्ले हायर्ड ए डेटा एनालिस्ट डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली डेटा एनालिस्ट को नेस्ले ने हायर किया है। दो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम क्या है, अगर ये डेटा एनालिस्ट ठीक से काम नहीं कर पाया, इफ ही इज नॉट एबल टू डिलीवर द थिंग्स ऑन टाइम, टाइम पे वो रिपोर्ट डेटा एनालिसिस करके नहीं दे पा रहा है,
तो नेस्ले इसको इमीडिएटली निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि दिस गाय इज ए डायरेक्ट एम्प्लॉय टू नेस्ले। इतना आसान नहीं होता है एक एम्प्लॉय को निकालना व्हेन ही इज ए डायरेक्ट एम्प्लॉय। बट फॉर एग्जांपल नेस्ले टीसीएस के थ्रू किसी को हायर किया है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, नेस्ले एक दिन में इसको हटा के दूसरा एम्प्लॉय को ले लेगा। ओके, अगर द डेटा एनालिस्ट हु नेस्ले हैज हैड थ्रू टीसीएस इज नॉट गिविंग द रिजल्ट्स, सो नेस्ले को मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एक दिन के अंदर ये इसको हटाएगा, किसी और को लाके वहां पे बिठा देगा। ओके, एंड सेकेंड थिंग, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, एक बार रिपोर्ट जनरेट हो गया, मतलब एक रिपोर्ट बनता है जो कि ईयर्स एंड ईयर्स काम करता है। बाय लुकिंग इनटू द रिपोर्ट पीपल विल टेक डिसीजन मेकिंग ईयर्स एंड ईयर्स। ओके, तो जब रिपोर्ट बनाना होता है, एट द टाइम यू नीड ए वेरी स्किल्ड रिसोर्स। ओके, बहुत मतलब वेरी स्किलफुल रिसोर्स आपको चाहिए, डिफिकल्ट डेटा है जो भी है। सो उसके लिए नेस्ले इज रेडी टू पे $25। बट एक बार रिपोर्ट जनरेट हो गया है, उसको मेंटेन करने के लिए उतना स्किल्ड रिसोर्स नहीं चाहिए। तब नेस्ले क्या करेगा, इसका काम हो गया है तो इसको हटा देगा, और ये क्या करेगा, इट विल अप्रोच XYZ कंपनी। XYZ कंपनी को अप्रोच करके बोलेगा मेरा रिपोर्ट रेडी है, बस उसको मेंटेन करने के लिए मुझे एक बंदा चाहिए, एंड दे विल टेक इट फ्रॉम XYZ कंपनी हु इज चार्जिंग लेस। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को इफ दे गो थ्रू ए सर्विस बेस्ड कंपनी। जैसे आपने घर बना दिया, घर बनाने के लिए यू नीड ए स्किल्ड लेबर, हो गया। उसके बाद घर में छोटा मोटा इश्यूज है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू आ गया, उसके लिए थोड़ी ना हम कंपनी वालों को कांटेक्ट, हम लोकल में किसी को बुला के करवा लेंगे। क्यों, ये छोटा सा काम है, इसके लिए ज्यादा स्किल मुझे जरूरत नहीं है। लोकल रिसोर्स जो है, लोकल इलेक्ट्रिशियन को मैं बुलाऊंगा, काम करवा दूंगा, उसको भेज दूंगा। फॉलोइंग? ये सर जैसे कि आपने बताया कि इंटीरियर डिजाइन हायर हम्म करेंगे और उसका मटेरियल यूज हम्म करेंगे। मैं ये बोल हम्म। रहा हूँ कि अगर इंटीरियर डिजाइन सिर्फ डिजाइनर को हायर करेंगे और मटेरियल अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, दिस दिस पर्सन यू विल डायरेक्टली हायर, यू आर सेइंग? यस सर। वही प्रॉब्लम बोल रहा हूँ ना, काम जब हो गया ये देखो, कोई भी कंपनी में निकालना इतना आसान नहीं होता है। सो वंस यू हैव हायर्ड हिम, आपका इंटीरियर का काम हो गया, उसके बाद आप काम उसको दो या ना दो, उसको सैलरी पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज ही इज योर ओन एम्प्लॉय नाउ, यस सर। राइट। बट अगर मैं वेंडर के थ्रू जा रहा हूं, काम हो गया, मैं पैसा पे ही नहीं करूंगा, हो गया, मेरा काम हो चुका है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पे यू, यू आर नॉट माई डायरेक्ट एम्प्लॉय, यस राइट। सर। अगर आप काम ठीक से नहीं कर पाए, डायरेक्ट एम्प्लॉय को मैं इतना आसानी से हटा नहीं पाऊंगा। मगर अगर मैं कोई क्लाइंट वेंडर के थ्रू जा रहा हूं, मैं उसको बोलूंगा नहीं आपका रिसोर्स अच्छा नहीं है, मुझे कोई और दूसरा रिसोर्स दो। तो देर इज ए ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मी। सर आप सिर्फ कंपनी ओरिएंटेड सोच रहे हो, एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी इन सोचना आईटी चाहिए। इंडस्ट्री में कोई एम्प्लॉय ओरिएंटेड नहीं होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। हाँ। आप अच्छा। आप जो देख रहे हो ना कि क्या होता है, ले ऑफ्स होता है। ले यस ऑफ सर। क्यों होता है? ले ऑफ इसलिए होता है क्योंकि आप बेंच पीरियड में बहुत ज्यादा टाइम रुके हो, मतलब आपको कोई वेंडर नहीं ले रहा है, आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। अगर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है आपको, टीसीएस आपको कितना महीना ऐसे खाली बिठा के पे करेगा? आपसे कोई मनी जनरेट नहीं हो रहा है तो टीसीएस आपको खाली कैसे पे करेगा? एक महीना पे करेगा, 2 महीना पे करेगा, 3 महीना पे करेगा, मे बी 6 महीने तक पे करेगा। उसके सर बाद मिनिमम कितने महीने तक मतलब बेंच पीरियड वो रहेगा, फिर डिपेंड होता उसके है बाद? कि आपका पोजीशन क्या है। अगर आपको सैलरी महीने में 50,000 मिल रहा है, देन दे कैन बेर यू फॉर 1 ईयर ऑल्सो। मगर अगर टीसीएस आपको पर मंथ 2 lakhs पे कर रहा है, देन दे कैन नॉट बेर यू फॉर 1 ईयर, दे कैन बेर यू फॉर 3 months मैक्सिमम। ओके। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर सैलरी स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सर इसमें टीसीएस का मतलब गलती है ना, उसको क्लाइंट अगर वेंडर के थ्रू जाना है तो Guys, टीसीएस we ही। are actually diverting the topic. ये हम लोग अब आराम से बाद में भी बात कर सकते हैं। आपने ये डिफरेंट करियर पाथ्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हम आप सर तो है आपके पास, आपको जितना क्वेश्चन पूछना है कंपनी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, पेरोल के बारे में, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी कैन आस्क हिम, इज देयर
ओके विथ अस। बट आप लोगों को पता है क्या, मतलब हम लोग डेटा एनालिटिक्स, आई मीन वी हैव जॉइंड दिस वेबिनार। डेटा कैसे जनरेट होता है आपको किसी को कुछ पता है डेटा कैसे जनरेट होता है? आप क्यों डेटा एनालिस्ट का क्या रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब आई थिंक मेनी मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, मे बी यूडेमी, कोर्सेरा, अलग प्लेटफॉर्म से कोर्स किए हो। कैन यू गाइस टेल मी हाउ डेटा गेट्स जनरेटेड? मतलब आपको क्या लगता है डेटा एनालिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है? कोई बता सकता है? सर अरेंज एंड प्रेजेंटेशन के लिए। नहीं 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 नहीं, डेटा डेटा कहाँ से कैसे जनरेट होता है, क्यों? मतलब डेटा एनालिस्ट तो आगे, मतलब गोइंग, मतलब डेटा एनालिस्ट तो आगे जरूरत पड़ेगा, बट डेटा कैसे जनरेट होता है, कहाँ से इतना डेटा आता है? बहुत रिसोर्सेज। बहुत बहुत बंदे हैं जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, आई एम श्योर अबाउट देम। बट कैन यू गाइस टेल मी, अब मुंह ही नहीं खोल रहे हो कैसे? सी व्हेन वी आर सेइंग आईटी प्रोफेशनल, सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट वर्क, राइट? इट इज अबाउट कम्युनिकेशन। बहुत जन के साथ बात करना पड़ता है। यू हैव टू टॉक टू द क्लाइंट, यू हैव टू टॉक टू योर मैनेजर्स, यू हैव टू टॉक टू योर टीम्स। ओके, आप डेवलपमेंट की टीम के साथ, बिजनेस एनालिटिक्स टीम के साथ, सबके साथ बात करोगे। आप ये शांत बैठोगे तो कैसे मिलेगा यार? आपको कितना भी पता है, इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, देन यू विल बी आउट ऑफ द रेस। एवरी डे जब आपका डे टू डे काम होता है ना, उसमें से 8 घंटे का काम होता है, ठीक है? उस 8 घंटे में 3 घंटा आपका मीटिंग में जाएगा फॉर श्योर। मीटिंग मतलब ऐसा नहीं होगा कि 5-6 लोग होंगे तो जो बोलना है वो बोलेगा और जो चुप रहना है वो रहे। वन ऑन वन मीटिंग होता है। वन ऑन वन मतलब दो ही लोग होते हैं। तो वी कैनॉट स्किप इट, वी हैव टू टॉक, नो अदर वे। बहुत जन ऐसे सोचते हैं कि नहीं, कोर्स कर लिया, टूल सीख लिया, मास्टरी कर लिया, हो गया। नहीं, दैट इज नॉट इनफ। यू हर डे, आई मीन एवरी डे, अब लॉग इन करो, ऑफिस जाते ही स्टैंड अप मीटिंग। क्या दिन भर क्या एक्टिविटी, क्या टास्क पे काम कर रहे हो, लोग आपको चैलेंज करेंगे, आपको मतलब ये इतना टाइम में आप ये करोगे, पूरा टास्क डिस्ट्रीब्यूट होता है। बीच बीच में अपडेट लेते हैं, क्लाइंट कॉल्स होता है टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, फिर डेवलपमेंट टीम के साथ, फिर मे बी जो आपका रिपोर्ट को टेस्ट कर रहा है उसके साथ मीटिंग, डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ मीटिंग। सो कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ऐसा मत सोचिए कि 2 महीने का कोर्स करके सब कुछ हो जाएगा, दुनिया पलट दूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, सो ये सारे स्किल्स को भी आपको डेवलप करना है। आप यहाँ पे 15-16 लोग हैं, कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है, ठीक है? कैसे चलेगा? आप खुद ही बताओ, कौन आपको हायर करेगा? आपको कितना भी आता है, आप 8 CGPA 9 CGPA वालों भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज आई वॉन्ट सी, मैं आपको ग्लोबल कस्टमर के साथ काम दूंगा, ठीक है? आप अगर उसके साथ बात ही नहीं करोगे, प्रॉब्लम नहीं समझोगे, रिक्वायरमेंट्स नहीं समझोगे, उसको क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, तो कैसे चलेगा? आप लोग ज्वाइन किए हो, पूछो। मतलब सी, मैम, इवन इफ इट इज अ सिली क्वेश्चन आल्सो आस्क, देयर आर हाँ, मेनी दैट लाइक इज दिस। फाइन। आप जैसा बहुत भी जन क्वेश्चन हो, इवन इफ इट इज ए वेरी स्मॉल, आपको लगता होगा कि ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है, मैं पूछूं या ना ना पूछूं, ओके, देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। यू कैन आस्क मी एवरीथिंग। वट एवर आई कैन आंसर आई विल आंसर यू, वट एवर आई कैनॉट आंसर आई विल टेल यू, आई विल come back to you. Okay, and regarding the mark, Shankar sir, I will request you, if you are on laptop, try to keep your certificates ready. Let's try to show them that marks doesn't impact your career. आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट कैरिंग माय लैपटॉप, लेट मी Okay. चेक। Okay, okay, fine. Let's see that one. If you find it, or else you can just verbally tell them later on. ठीक है. Okay. For some of the other question you should ask. Anyway, we will talk about data now, but I just want to take that last question. I think Preetham or somebody was asking. No, I will take that one last question and then I will go to the data part. Preetham, you are asking one last question. What was that? कुछ आप पूछ रहे थे आप यहाँ पे. सर मैं पूछ रहा था कि टीसीएस हम्म. को क्लाइंट नहीं मिलने से जो बेंचमार्क में बैठे उनका क्या प्रॉब्लम है? वो टीसीएस क्लाइंट अगर वेंडर के थ्रू जा रहे हैं तो टीसीएस क्लाइंट नहीं, रहेगा ना? टीसीएस, हाँ सही बात है, आपने जो क्वेश्चन पूछा ठीक पूछा है, बट टीसीएस आपको अरेंज कर रहा है ना कॉल्स। अगर टीसीएस आपको क्लाइंट के साथ अरेंज नहीं कर पाता है, देन टीसीएस का गलती है। मगर टीसीएस आपको चांस दे रहा है, राइट? आपको नेस्ले के साथ चांस दिया, आपको पेप्सिको के साथ चांस दिया, आपको हेनिकेन के साथ चांस दिया, ऐसे बहुत सारे कंपनी के साथ आपको चांस दिया है, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन देर इज अ स्किल गैप बिटवीन यू एंड द रिक्वायरमेंट। अगर टीसीएस आपको
कॉल्स ही अरेंज नहीं कर पा रहा है, प्रोजेक्ट ही नहीं ला पा रहा है, देन वो टीसीएस का गलती है। सर कितना कॉल्स अरेंज मतलब ये करेंगे इस वाले? जितना उनको मिलता रहेगा उतना करेंगे, वो बहुत सारे कॉल करेंगे, अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो देन द नेक्स्ट गाय विल गेट द प्रेफरेंस। ओके, एटलीस्ट आपको 5-6 कॉल या 10 अप टू 7-8 कॉल्स तो आराम से आपको मिलेंगे। यस सर, गॉट इट। ओके, दे विल अरेंज यू एनफ कॉल्स, एनफ इंटरव्यू कॉल्स आपको देंगे। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो देन आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए भी भेजेंगे, दे विल डू देयर इंटरनल स्किल अप ट्रेनिंग्स वगैरह वो सब करेंगे। स्किल गैप कहाँ पे हो रहा है वो भी वो लोग करेंगे। बट अगेन इट डिपेंड्स कि अगर आपका सैलरी 2 लाख है या 1.5 लाख है, देन दे कैन नॉट गिव यू द स्किल डेवलपमेंट फॉर 6 मंथ्स एंड ऑल, क्योंकि आपको बिठा के 6 मंथ्स मतलब नियरली 10 to 12 लाख उनको देना पड़ेगा, राइट? तो दैट इज ए प्रॉब्लम। ये टीसीएस है या आईबीएम है, इसीलिए आपको 6 महीना 3 महीना तक बेयर करेंगे। अगर आप कोई XYZ कंपनी में ज्वाइन होते हो, 1 महीने के अंदर वो निकाल देंगे इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट द बिलिंग, राइट? Because these guys are financially strong, so they will give you enough opportunities. मगर आप कोई स्टार्टअप में ज्वाइन होते हो, इसीलिए ना स्टार्टअप जितना भी ज्यादा पे करे, बट स्टिल सम पीपुल जो स्टार्टिंग स्टेज में है वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। बट जो मतलब 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, उनका सैलरी ऑलरेडी 2 लाख के आसपास है ना, उसको अगर स्टार्टअप बोलेगा 4 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, फिर भी वो लोग सोचेंगे जाने के लिए। क्यों? उनको पता है कि अभी वो लोग रेडी है 5 लाख देने के लिए, क्योंकि उसको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है। कल वो प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो इनके पास पैसा नहीं है मुझे पे करने के लिए। बट अगर बड़ी कंपनी में ज्वाइन हो से क्या होगा, अगर एक प्रोजेक्ट जाएगा तो भी दूसरा प्रोजेक्ट रेडी रहता है उनके पास। अगर नहीं है तो भी उनके पास फिनेंशियली वो इतना स्ट्रांग है तो वो थोड़ी दिन के लिए आपको बेयर कर पाएंगे। ठीक है? यस सर। राइट। या एनीथिंग एल्स? एंड नो रिगार्डिंग सर, पीपल हु यू आर, कैन प्रोसीड। हाँ, रिगार्डिंग पीपल हु आर थिंकिंग कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ या आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई डू नॉट हैव अ कोडिंग नॉलेज, देन हाउ आई कैन क्रैक दिस डेटा एनालिस्ट थिंग? ओके, उसके लिए नहीं चाहिए। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूंगा, उसके बाद शंकर सर उनका खुद का एग्जांपल देंगे। आई केम फ्रॉम, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है बट आई एम इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर से के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है, 90%। ओके, सो आई हैव डन माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नथिंग रिलेटेड टू कोडिंग। ओके, कुछ भी मैंने नहीं किया। उसके बाद ऑल्सो 3 इयर्स आई वर्कड एज ए टेक्निकल सेल्स, B2B सेल्स में मैं था। ओके, देर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक्सेल। ओके, एक्सेल में मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स थे, बहुत सारे डीलर्स थे। हर एक डीलर के पास 100 कस्टमर्स थे। तो उनका डेटा मैं गैदर करना शुरू किया। मतलब इतने सारे कस्टमर्स का डेटा समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले रहा है, कौन सा कस्टमर प्रोडक्ट लेना बंद कर चुका है। तो उसके लिए बहुत सारा एनालिसिस हम कर सकते हैं। So like this, I started my data analytics. Even though I was in sales, I started doing the data analysis in Excel. Once Excel थोड़ा समझ में आने के बाद, then I thought, okay, let's go for a bigger tool. क्योंकि आईटी में Excel में ज़्यादा काम होता है, बट डेटा एनालिस्ट के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता है। MIS वो के लिए होता है, बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है ना, दे विल लुक फॉर ए बेटर टूल, जैसे कि सीक्वल, जैसे कि पावर बीआई, जैसे कि टैबलू, ओके, पाइथन। दीज आर द टूल्स वेयर देर हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटीज विथ ह्यूज सैलरी पे। तो मैं अपना सैलरी चेंज करने के लिए आई स्टार्टेड स्लोली स्लोली गेटिंग इनटू पावर बी। आई लर्न पावर बी वेरी वेल। बट जो काम मैंने एक्सेल में किया था, उसी काम को मैंने प्रोजेक्ट किया कि मैं वो एक्सेल में नहीं, मैं वो पावर बी में कर रहा था। नोबडी इज गोइंग टू चेक कि आप क्या किए, कैसे किए। दे विल चेक वेदर मेरा काम आप कर पाओगे कि नहीं। ओके, दिस एंटायर डिस्कशन हैपेंड ऑन दैट वे। ओके, कि नेस्ले को जब चाहिए या टीसीएस को जब चाहिए, तो वो लोग, टीसीएस को ऑलरेडी पता है कि नेस्ले ये जो है इसको ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, रखेगा। जब उसका काम हो जाएगा वो क्लोज कर देगा। तो इसका काम में भी 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा या 3 साल में हो जाएगा। ओके, विद इन 3-4 इयर्स इसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो 3-4 साल के लिए या 2-3 साल के लिए आई डोंट वांट ए आईआईटी गए और आईआईएम गए। मुझे बस इतना चाहिए जो मेरा काम करके मुझे दे दे और उसके बाद वो चला जाए। इट डजेंट मैटर्स टू मी।
ओके, एवरी कंपनी थिंक्स इन दैट वे ओनली। मेरे पास जो काम है वो काम जो कर सकता है मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं परमानेंटली इसको नहीं रख रहा हूं मेरे पास। आप यहाँ पे 2 साल काम करोगे फिर बेंच पे आओगे, फिर पेप्सिको में जाओगे 2 साल काम करोगे फिर बेंच पे आओगे, फिर हेनिकेन में जाओगे 1 साल काम करोगे फिर बेंच पे आओगे। जब तक आप टीसीएस में हो आप मल्टीपल कंपनीज के साथ काम करोगे। सर इनके मतलब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, हम्म। प्रोजेक्ट वर्क खत्म हो जाता है 3-4 साल बाद, जो प्रोजेक्ट हम्म। टाइमिंग रहता है। हम्म। उसके बाद फिर क्या करना होता है? फिर अब इंटरव्यू, क्लाइंट आके इंटरव्यू लेते हाँ हैं, फिर उसके हाँ बाद हाँ, हायर होता है। करेक्ट राइट। करेक्ट, आप फिर वापस बेंच में आ जाओगे जब आपके पास प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। हम्म। जनरली क्या होता है, ये नेस्ले बता देता है कि और 6 महीने में मेरा प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, 6 महीने के बाद आई एम नॉट गोइंग टू पे टू योर रिसोर्स। तब आप इस ओके। प्रोजेक्ट में जब होते हो तभी आपका दूसरे क्लाइंट के साथ इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। ओके, इसका मतलब क्या है, जब तक गॉट ये खत्म हो जाता है तब तक आपके पास एक और प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। ओके। तो सर जनरली जो ये कंपनीज जो प्रोजेक्ट वर्कर्स हैं मतलब कितने साल के लिए, कुछ ऐसा होता है कि 3-4 साल या 10 साल, पंद्रह मतलब ये साल तक? यहाँ पे आप कितना टाइम तक ऑन एन एवरेज काम करते हो, दैट इज व्हाट यू आर यस आस्किंग। यस यस। हाँ ये हाँ, ये यस सर। पूरा ये पूरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। देखो मैं अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट में जहाँ पे काम कर रहा हूँ, एक ही प्रोजेक्ट में ऊपर काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया है। ठीक है। ओके। उससे पहले एक प्रोजेक्ट में कर रहा था जो कि माइग्रेशन प्रोजेक्ट था। ठीक है, वहां पे सिर्फ 6 महीने का काम था तो मैंने 6 महीने ही काम किया। उससे पहले एक अच्छा। प्रोजेक्ट था जहाँ पे 2 साल काम किया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उनके पास कितना काम है। ओके। गॉट इट। ओके, इसमें भी बहुत यस। सारे होते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अलग होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट अलग होता है, माइग्रेशन प्रोजेक्ट अलग ये सब हम लोग सीखेंगे। ओके, इन आवर अच्छा। कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर रियल वर्ल्ड में जो होता है आईटी में। वो कौन से प्रोजेक्ट होता है, कौन से प्रोजेक्ट में कैसा काम होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। ताकि अब जब ज्वाइन करोगे कोई भी कंपनी, आपको कुछ नया नहीं लगेगा। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टीम्स यू आर गोइंग टू वर्क। आप अकेले, मैं डेटा एनालिस्ट का काम मैंने सीख गया हूं, मैं सब कुछ कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। ओके, आप जब काम करते हो एज ए डेटा एनालिस्ट, आपके साथ एक डेटा इंजीनियर होता है, आपके साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, आपके साथ एक एडमिन होता है, आपके साथ एक प्रोडक्ट ओनर होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है। तो आपको इन सब रोल का काम क्या है वो भी समझना है। आपको एक इश्यू मिला, आपको एक इश्यू है उसको फिक्स करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला इश्यू डेटा इंजीनियर फिक्स करता है या बिजनेस एनालिस्ट फिक्स करता है। अगर डेटा इंजीनियर का काम आप जाके बिजनेस एनालिस्ट को पूछोगे, देन इट इज नॉट गुड। ही विल थिंक कि आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये मेरा काम नहीं है। आप इलेक्ट्रिक का काम लेके जाके अगर आप जाके प्लम्बर से पूछोगे, देन ही विल बी लुकिंग एट यू डिफरेंटली, लाइक ये मैं तो प्लम्बर हूँ, ये मुझे इलेक्ट्रिक काम क्यों पूछ रहा है। राइट। यस सर। सो वी नीड टू नो ईच एंड एवरी रोल। वो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन क्या करता है, किसको कौन से सवाल पूछना चाहिए। डे टू डे एक्टिविटीज आपके क्या होते हैं, स्टैंड अप कॉल मतलब क्या होता है, स्टैंड अप कॉल में आप क्या करते हो। जनरली स्टैंड अप कॉल में क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कॉल लेता है, मीटिंग करता है, उसमें आपको क्या बोलना होता है कि कल आपने क्या किया था, आज आप क्या करने वाले हो, और आज जो काम है वो करने के लिए कोई रोड ब्लॉकर है क्या, मतलब एक्सेस का इशू है कि कुछ और इशू है, ये इशू है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये सब उसको बताना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जाके उसको रिजॉल्व करके आपके पास आएगा। तो दैट इज ए स्टैंड अप कॉल। रिव्यू कॉल क्या होता है, स्टेक होल्डर के साथ मतलब क्लाइंट के साथ क्या बात होता है। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो टू वर्क एज ए रियल वर्ल्ड डेवलपर। सिर्फ टूल के ऊपर काम करना आने से वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, जो रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं उसको टेस्टिंग करना पड़ता है, उसके ऊपर वी नीड टू क्रिएट सम डॉक्यूमेंटेशन। लेट मी शो यू वन डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल। Meanwhile, if anybody is having any questions, you can ask me. नो सर, यू कैन सो प्रोसीड, गाइज, कंटिन्यू। एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली जो जो ट्रेनिंग का जो रोड मैप है,
सारे टूल्स तो कवर किया जाएगा, मतलब इन डेप्थ बेसिकली। एक बंदे को जो मतलब 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसी लेवल का नॉलेज दिया जाएगा। बेसिकली सर का जो टोटल एक्सपीरियंस है, बेसिकली ही विल बी क्यूरेटिंग दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड विल एक्सप्लेन यू इन दिस 6 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है। जो बेसिकली आप अगर अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करते हो, हैंड्स ऑन तो जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। 100% practical training, because when we are saying we'll become an IT professional, so when we say ourselves professional means it should be 100% practical work। यहाँ पे कुछ थ्योरी है ही नहीं। आप 1-2 दिन हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे, जहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद इमीडिएटली टूल्स पे जाएंगे। वो सीक्वल हो, एडवांस एक्सेल हो, पावर बीआई हो और फैब्रिक। आप लोगों ने अगर मतलब थोड़ा गूगल वगैरह किया होगा, आपको पता होगा कि फैब्रिक हैज गॉट ह्यूज डिमांड। एक डेटा एनालिटिक्स के जो 4-5 प्रोजेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ एक डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट करेंगे विच विल ऐड इमेंस वैल्यू टू योर रेज्यूमे। क्योंकि आप बता पाओगे कि मैंने डेटा एनालिटिक्स पे भी काम किया है, डेटा इंजीनियरिंग में 1-2 प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन किया है या काम किया है। तो वो दो चीज हम लोग कवर करेंगे। पाइथन भी होगा, पाइथन में और उसके साथ एआई का थोड़ा फ्लेवर रहेगा, वाइब कोडिंग रहेगा। और जो पाइथन है, पाइथन का आर्किटेक्ट यहाँ पे कॉग्निजेंट में एक डेटा इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट है। जो फैब्रिक फैब्रिक जो टूल्स है वो डाटा एनालिटिक्स में तो जरूरी नहीं है, ओनली फॉर सीवी सीबी में वैल्यू एडिशन के लिए जरूरत सीबी होगा, में राइट? सीबी में वैल्यू एडिशन होगा। और फैब्रिक में अभी क्या है ना, फैब्रिक में एक मतलब टूल में, एक क्लाउड टूल में आप सब कुछ कर पाओगे। फैब्रिक में आप डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो। इंडिविजुअल तो हम लोग टूल्स सीखेंगे, इंडिविजुअली हम लोग टूल सीखेंगे। और फैब्रिक में डेटा एनालिटिक्स भी हो सकता है, डेटा इंजीनियरिंग हो सकता है, इवन एजेंट्स वगैरह, एजेंटिक एआई, जेनेटिव एआई का भी काम फैब्रिक भी इंटीग्रेट कर रहा है। तो फैब्रिक काफी आगे मतलब धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। तो फैब्रिक में भी आगे बहुत सारा फैब्रिक opportunity है। फैब्रिक इज द टूल। ये सॉफ्टवेयर यस। है, एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। ओके। ठीक है। अभी अभी रिसेंटली 2 बैच में हम लोगों ने, दो नहीं ज्यादा होगा, 4 बैच में हम लोगों ने फैब्रिक पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उनको बोला कि रेज्यूमे में ऐड करो। रेज्यूमे में ऐड करते ही इमीडिएटली पीपल स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स। ठीक है। उन्होंने ओवरऑल 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस था उनका, उसके साथ उन्होंने फैब्रिक जोड़ दिया। तो दे आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स दैट फैब्रिक में क्या क्या आता है, और फैब्रिक में इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है। तो फैब्रिक एडिशनली हम लोग एक्चुअली एनालिटिक्स पढ़ाएंगे, बट एडिशनली डेटा इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट करेंगे, सो दैट आप फैब्रिक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। और सब में प्रोजेक्ट होगा। बेसिकली एक्सेल में डैशबोर्ड होगा आपका, सीक्वल में एक डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा, फैब्रिक में प्रोजेक्ट होगा। सर ये देन इंटरव्यू में फैब्रिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? नहीं नहीं आप अगर रेज्यूमे रखोगे, आप अगर रेज्यूमे रखोगे फैब्रिक रिलेटेड, देन डेफिनेटली दे विल आस्क यू। अगर व्हेन दे ओके। आस्क यू यू नीड टू आंसर, मीन्स आपको पहले से करके रखना पड़ेगा। सो इन दिस, आप जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हो ना, रॉ डेटा हम्म। मल्टीपल सोर्सेज से कैसे प्री प्रोसेस होके फाइनली आप और भी रिपोर्ट कैसे बनता है, दिस एंटायर थिंग वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, आई कैन शो यू ऑल्सो कि व्हाट वी हैव डन। देखो, दिस एंटायर थिंग वी हैव डन। यहाँ पे पाइपलाइन बनाया जैसे, ओके, डेटा को इंजेक्शन कैसे करते हैं। ओके, इफ यू सी हियर, यहाँ पे ये जो एडीएफ पाइपलाइन है ना, यहाँ पे डायनामिकली ऑटोमेटिकली डेटा कैसे लोड होगा। ओके, उसके लिए वी विल क्रिएट द पाइपलाइंस हियर। ओके, ये सब प्रैक्टिकली हम लोग करने वाला है। दिस पाइपलाइन वी आर गोइंग टू क्रिएट, डेटा यहाँ से सर आएगा, आज यहाँ जाएगा। ये आपको आज मैं समझने के लिए अभी इट विल बी डिफिकल्ट, बट आज मैं व्हाट आई दिखाऊँ। एम ट्राइंग टू से इज we will learn everything which is required for the industry in a practical way। आप मेरा बात में जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ सुन के छोड़ दोगे नहीं होगा। मैं जो कर रहा हूँ वो एंटायर थिंग यू नीड टू डू बाय योर सेल्फ। और आप ओके ऐसा फैब। आप टेंशन मत लो। इवन जैसे सर ने बोला, बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी आके ये करके ऑलरेडी कंपनी में प्लेस हो चुके हैं। दे आर वर्किंग इन वेरी गुड कंपनीज। अभी एक बंदे को 4, सर आपके पास अगर वो होगा, सो 4 ऑफर उसको मिला। सचिकांत करके अपना पुराना स्टूडेंट है। सो उसको, ही इज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है, बट ही इज एबल टू क्रैक एक्सेंचर, कोलाबरा, फोर्टन, एम्फासिस, 4 कंपनी में उसको जॉब मतलब ऑफर मिला है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। एक बंदे को आईबीएम में लगा है, एक बंदे को एम्फासिस में लगा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्योरली फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, इवन आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से, दे हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली क्रैक इन एमएनसीज। तो ऐसा कुछ है नहीं। बट आपको ना 100% प्रैक्टिकल मोड पे जाना होगा, सब कुछ हैंड्स ऑन करना होगा,
तभी आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे और जस्टिफाई कर पाओगे आपके रोल को। आप ऐसा नहीं कि सर ओ, पढ़ा रहे हैं, क्लास में समझ में आ रहा है और आप जाके शांत बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे हैंड्स ऑन, तो प्रॉब्लम होगा। तो इट यस इज 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग। इट हाँ, यहाँ द पे वे वी आर गोइंग टू लर्न इज, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि आपको मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा, तो मैं रियल वर्ल्ड में जैसा प्रोजेक्ट मिलता है, ओके, रियल वर्ल्ड में कैसे मिलता है, एक आपको वायर फ्रेम मिलता है, जैसे ये पीपीटी है ना, वैसे एक वायर फ्रेम मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? वायर फ्रेम बोलते हैं। वायर फ्रेम में लिखा होगा कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, बस उतना ही होगा। ओके, और उसके लिए क्या फॉर्मूलाज, क्या लॉजिक लगेंगे, वो दिया जाएगा, बस उतना है। इसको देख के आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू क्रिएट ए रिपोर्ट। ओके, सो आपको डेटा मिलेगा और वायर फ्रेम मिलेगा। वो वायर फ्रेम को देख के एज इट इज आपको रिपोर्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ पावर बीआई रिपोर्ट जो है, दिस दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्ट विच यू आर गोइंग टू डू। जब आप पूरा सीखने के बाद यू आर गोइंग टू क्रिएट, यू विल बी क्रिएटिंग दिस रिपोर्ट। ओके, ओके, जैसे मैं वायर फ्रेम दिखाया था, यहाँ पे क्या था वायर फ्रेम में? पहला पेज में क्या था? यहाँ पे प्रॉफिट लोगो, समरी और प्रॉफिट लोकेशन एनालिसिस होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर। यहाँ पे क्लिक करने से समरी पेज में जाना चाहिए। ओके, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस वन इट शुड टेक मी टू द समरी पेज। व्हेन आई क्लिक ऑन होम इट शुड टेक बैक टू माय समरी पेज। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस वन इट शुड टेक मी टू द प्रोडक्ट पेज। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस वन इट शुड टेक मी टू बैक। ओके, सो दिस थिंग्स है ना। यहाँ पे वाईटीटी में क्लिक करने से वाईटीटी का रिजल्ट, ये देखो डायनेमिकली टाइटल भी मेरा चेंज हो रहा है। ये सब आप लोग करोगे। ओके, सो बेसिकली बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन एवरीथिंग शुड चेंज। तो ये सारे करने के लिए यू शुड बी एबल टू राइट सम काइंड ऑफ डैक्स वगैरह लिखना पड़ेगा। सो ये प्रैक्टिकली कैसा होता है, हाउ टू राइट दीज थिंग्स एंड ऑल वी आर गोइंग टू लर्न। सो मतलब आपको रियल वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट जैसे मिलता है वैसा ही मैं आपको रिक्वायरमेंट दूंगा, मतलब सिखाने के बाद। रियल वर्ल्ड में जैसे रिव्यू होता है कि एक बार आपको काम देने के बाद फाइनली आप काम जब खत्म हो गए तब मैं चेक नहीं करूंगा। मैं बीच बीच में मेरा रिव्यू कॉल होगा, 3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार। उस टाइम में मैं देखूंगा कि आपका प्रोग्रेस क्या है। ओके, उस टाइम में आपको कैसा आंसर करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, दो थिंग्स आई एम गोइंग टू गाइड यू। जब आपको रिक्वायरमेंट मिलता है आपको पूछा जाता है एस्टिमेट क्या है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, आपको एस्टिमेट पूछा जाता है। एस्टिमेट मतलब क्या होता है? ये प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ये पेज बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। सो वी शुड बी एबल टू गिव एन एस्टिमेट। रफली हमें एक एस्टिमेट देना चाहिए कि हाँ ये 6 दिन में खत्म होगा, क्या ये 10 दिन में खत्म होगा। वो एस्टिमेट कैसे देते हैं? बहुत लोग जो टूल सीख के आते हैं ना वो एस्टिमेट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं है कि एस्टिमेट कैसे देते हैं। एस्टिमेट देने के लिए आपको पता होना चाहिए लॉजिकली ये कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है। वो जब हम समझेंगे उसके हिसाब से वी विल गिव द एस्टिमेट। So basically those things and all we are going to learn here. You are going to get the requirement like a real world. You are going to give the estimate as a real world. You are going to have a review calls as happens in the real world. You will be doing the testing documents as you do in the real world. Then handover मतलब हैंड ओवर मतलब आपकी जगह में कोई और आता है। फॉर एग्जाम्पल आप छुट्टी में जाते हो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तब तक काम बंद नहीं होगा ना, आपकी जगह पे कोई और आके काम करेगा। तो उसको नॉलेज ट्रांसफर देना पड़ता है कि हाँ मैंने यहाँ तक किया है, आप यहाँ से शुरू करना है। सो वो नॉलेज ट्रांसफर कैसा होता है? सो बेसिकली दिस इज ए प्रैक्टिकल रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग विच वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, एवरी डे यू आर गोइंग टू गेट ए रनिंग नोट्स लाइक दिस। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसके लिए आपको एक रनिंग नोट्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एनी बैच इफ आई टेक, ओके, लाइक दिस यू विल गेट ए रनिंग नोट्स। हर रोज जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना वो सब एक नोट्स में नोटपैड में लिख के मैं आपको शेयर करूंगा हर रोज, या 2 दिन में एक बार आपको असाइनमेंट मिलेगा। ओके, यू विल बी डूइंग दोज थिंग्स। एंड ये रनिंग नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एवरी डे यू कैन नॉट गो थ्रू द 1 आवर 2 आवर रिकॉर्डिंग, आप हर रोज नहीं देख पाओगे। सो ये रनिंग नोट्स आपको हेल्प करेगा कि रिकैप करने के लिए, रिवीजन करने के लिए ये काम करेगा। और जितने लोग इंटरव्यूज अटेंड किए हैं ना, मतलब आफ्टर गोइंग थ्रू आवर कोर्स, दे हैव ऑलरेडी सेड सर 70 to 75% ऑफ द क्वेश्चंस आपने जो रनिंग नोट्स दिया है उसी में से ही आए हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि 70% ऑफ द क्वेश्चंस इसी डॉक्यूमेंट से ही आएगा। बाकी 25 से 30% क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप इस सिनेरियो में हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे।
आपने इससे पहले कभी ऐसे सिनेरियो में थे कि नहीं? अगर थे, उसमें से बाहर कैसे आए? व्हाट वाज द डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? ऐसे कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, उसको कैसे आंसर करना चाहिए। ओके, दोज थिंग्स एंड ऑल वी आर गोइंग टू कवर। बेसिकली यू विल बी लर्निंग पावर बीआई एंड टू एंड, सीक्वल एंड टू एंड, पाइथन एंड टू एंड, एक्सेल एंड टू एंड। उसके बाद और एक एक्स्ट्रा आप सीखोगे डेटा इंजीनियरिंग पार्ट, जो कि वेरी सून वी आर गोइंग टू मेक इट एज ए सेपरेट कोर्स। ओके, जो अभी मैं आपको मतलब इस कोर्स के साथ फ्री में आपको मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी ए सेपरेट कोर्स वेयर वी आर गोइंग टू चार्ज ए गुड अमाउंट ऑफ इट। अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट बैच ऑनवर्ड्स। ओके, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट द एज ए कॉम्प्लीमेंट्री वन विच इज वेरी यूजफुल। क्योंकि आप जब बोलोगे मुझे डेटा इंजीनियरिंग का काम भी आता है और डेटा एनालिस्ट का काम भी आता है, देन द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी वेरी 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 हाई। हेलो सर। या, सर क्लास ये कब तक खत्म होगा? कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला सर। हाँ, दिस इज ऑलरेडी डन। यू हैव एनी क्वेश्चंस आई कैन आंसर, और एल्स वी कैन नो कंप्लीट। नो जनरली इट सर, विल नो बी सर, 1 hour। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड हम्म, सर। हम्म। Sir, actually, can I leave, sir? Actually, I have some work. You have some, I didn't get you. You want to leave? That Yeah. is what you're saying? Yes, 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 sir. हाँ हाँ, I you have can some leave. work, sir. Yeah, no problem. You can leave. We are going to close now only. Every day it will be 1 hour, 1 hour, 15 minutes kind of session only. If you want to Okay. leave, you can leave. If anybody is having some questions, you can ask, or else we can Yes, sir. close. Thank you, sir. Yeah, sure. कार किसी भी क्वेश्चन नहीं? इप्सिता, क्रिश, अस्मिता, प्रीतम ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ନା? କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କୁହ हाँ, ଓଡ଼ିଆରେ? मनीषा, तमें कौन पचार कि? मनीषा तुम वॉइस ब्रेक। हेलो। हाँ, अभी नॉट दैट एआई आज के टाइम में बहुत मतलब हो रहा है इधर मतलब। yeah, we हेलो। are going to cover those things also. AI related things also we are going to cover. But see, as much as there outside AI जो बोल रहे हैं ना, it is not that much in real world. But still we are going to cover those things here. But AI कब काम करेगा? जब आपका डेटा प्री प्रोसेस्ड होता है। ओके, सो AI रिलेटेड थिंग्स करने के लिए भी आपको पहले डेटा एनालिसिस और डेटा इंजीनियरिंग होना चाहिए। मतलब ओके, इस डेटा एनालिस्ट में कुछ एआई का कुछ रोल नहीं है? डेटा एनालिस्ट में रोल है। क्या रोल होता है एआई का? क्या रोल होता है? फॉर एग्जांपल मुझे एक रिक्वायरमेंट मिला है, वो मैं करने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल 1 दिन का काम चाहिए, 8 घंटे का काम 8 घंटे का काम है वो। बट मैं एआई को यूज करके 8 घंटे का काम मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ। दैट इज द यूज ऑफ एआई। एआई खुद से कुछ नहीं करेगा, एआई आपका काम रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा। फॉलोइंग? ओके सर। AI will not do everything by its own. When you have the knowledge of data analysis, आपको डेटा एनालिसिस के बारे में अगर सब कुछ पता है, तब AI को यूज करके आप आपका एफर्ट कम कर सकते हो। जो काम 2 दिन में होना चाहिए, वो काम आधे दिन में, 4 hours में हो जाएगा। इन दैट वे इट इज गोइंग टू हेल्प यू। यस और सर, आप गॉट इट। हाँ, आपको एक्चुअली बेसिकली क्या मतलब आपको पूरा नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर एआई आपको एक कोड दे रहा है या फॉर्मूला लिख के दे रहा है, आपको अगर सपोज एक्सेल का एक एडवांस फॉर्मूला चाहिए, तो आप एआई से लिखवा के ला रहे हो, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला देन देयर इज नो यूज ऑफ एआई जनरेटिंग दैट, राइट? तो आपका फंडामेंटल्स चीजें तो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा सो दैट एआई को यूज करके आपका जो टाइम रिड्यूस कर सकते हो। इट डजंट मीन दैट इफ यू डोंट नो थिंग्स एआई विल गिव इट टू यू, देन यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट एनीवेयर, और यू विल नॉट बी एबल टू इंजेक्ट इट एनीवेयर। सो दैट्स फॉर व्हाट इट मैटर्स। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप एक लीव रिक्वेस्ट चाइनीज में लिखना है, ठीक है? एक चाइनीज क्लास में आप जा रहे हो, आप एक लीव रिक्वेस्ट भेजना है चाइनीज में। आप चैट जीपीटी ये है, आप उसको बोल सकते हो चाइनीज में मेरा एक लीव लेटर लिख दो, वो लिख देगा। बट उसमें नाम आपका है और किसी और का है, या आपको कुछ चेंज करना है। जब तक आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, आप एडिट नहीं कर पाओगे, राइट? सुनो, अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज यस आता सर। है, अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आता है तो लेटर जनरेट हो चुका है, उसके अंदर थोड़ा नाम एडिट करना है, कहीं पे कुछ और ऐड करना है, वो आप फटाफट करके दे सकते हो।
मगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आता ही नहीं है तो आप कहाँ पे एडिट करोगे? सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो वंस यू नो थिंग्स देन एआई इज गोइंग टू हेल्प यू. विदाउट नोइंग द थिंग्स एआई इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन, मनीषा? Yes, sir. Thank you. या. ଆଉ କାହାର କିଛି question ଅଛି? और कुछ question है guys? Everyone understands Odia here, or is there anyone who do not follow Odia? So classes will be conducted in English and Hindi, but if at all, if you have any questions, you can ask in Odia also. Sir can speak 4 languages: English, Hindi, Telugu, Odia. ठीक है? किसी को कोई भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो. सर हैज गॉट ह्यूज एक्सपीरियंस. जैसे सर ने बोला, जो जो टूल्स कवर होगा, जैसे एक्सेल, एडवांस एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई, पाइथन, फैब्रिक, एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सारे चीज कवर होगा. और उसके साथ 5 to 6 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कवर होंगे. और इंडस्ट्री के जितने सारे प्रोसेसेस, जैसे अजाइल हो गया, कैसे काम होता है, टिकटिंग कैसे होता है, स्टैंड अप कैसे होता है, जो अजाइल मॉडल में कैसे, मेथोडोलॉजी में कैसे काम होता है, each and everything will be provided. उसके साथ, उसके बाद beyond that we conduct some tech workshops, जैसे क्लाउड हो गया. ठीक है? तो कुछ जो जो एडवांस वर्कशॉप्स रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ट्रेनिंग होगा. और आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, रेज्यूमे प्रिपरेशन, लिंक्डइन, नौकरी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. ठीक है? लगभग 6 months लगेंगे ये प्रोग्राम कंप्लीट होने में. एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर, आई मीन, आपने जस्ट, हाँ, प्री रिक्विजिट ये है कि आपको मतलब कंप्यूटर यूज करना आता है. दैट शुड बी सफिशिएंट. ऐसा अगर आपको माउस कीबोर्ड यूज नहीं करना आता है, वी कांट हेल्प, बिकॉज वी कैन नॉट टीच दैट. बट इतना अगर आता है, आपने बेसिक 1-2 महीने का कोर्स कर लिया है, तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ टू लर्न दिस कोर्स. दैट इज द प्री रिक्विजिट. आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. ठीक है? माउस कीबोर्ड का ऑपरेशन एंड ऑल दैट स्टफ. सो दैट इज द प्री रिक्विजिट. एंड एवरीथिंग वी विल टीच यू फ्रॉम स्क्रैच. आपको और किसी को, मतलब कोई भी टूल के ऊपर नॉलेज नहीं होगा तो बेटर है, क्योंकि हम लोग पूरा स्क्रैच से पढ़ाएंगे. अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू गाइस. ठीक है? ଆଉ କାହାର କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ସାରଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ଦିସ୍, मतलब ତାଙ୍କର ନଲେଜ କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିକି କିଛି ବି ଆମକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି, ଆମେ ପଚାରି ପାରିବା. ଓକେ? କାହାର କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି? न्यू बैच केबे स्टार्ट होबो? न्यू बैच एई 7th रे टार्गेट. ओके? 7th थर्सडे गोटे 8:30 रे होबार अछि, गोटे 10:30 रे 10 रे होबार अछि. सो आपण माने चेक करंतु, माने को बैच रे आपण जॉइन करिवे. जो मानकर आपनकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी बंदिता मैम, नॉले गुलाब, नॉले यू कैन चेक इन द ग्रुप जिन्होंने आपको मीटिंग लिंक भेजा होगा. ठीक है? 7th को मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा. और मॉर्निंग जो 8:30 बैच है उसमें एक्सेल से स्टार्ट होगा. जो 10:30 है उसमें पावर बीआई स्टार्ट हो रहा है. इवन आपको अगर जल्दी कोर्स खत्म करना है, आप दोनों बैच भी पैरेलली, कोई बोल रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 3 महीने में कोर्स खत्म करना है, यू कैन ज्वाइन पैरेलली ऑल्सो. ओके? जनरली मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, वन आफ्टर वन टूल कवर करेंगे, देन इट विल टेक 6 months. अगर आपको पैरेलली पढ़ना है, सुबह एक्सेल करना है, शाम को पावर बीआई करना है, या 10 बजे के बैच में पावर बीआई पढ़ना है, 8 o'clock के बैच में आपको एक्सेल पढ़ना है, दैट वे ऑल्सो यू कैन डू. ओके? वैसे भी आप कर सकते हो पैरेलली करके, सो दैट 3.5 months में पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. इफ यू हैव इनफ टाइम, मतलब दिन भर खाली बैठे हो, आप 2 टूल साइमल्टेनियसली पढ़ के मैनेज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, वो भी आप कर सकते हो. इट वी आर प्योरली स्टूडेंट फ्रेंडली. अगर स्टूडेंट जैसा चाहता है तो वैसे ही करेंगे. और ऐसा नहीं कि 6 months, ऐसा नहीं कि आप 6 months तक ऐसे कोर्स करते रहो, बीच में आप जब पावर बीआई सीक्वल खत्म हो जाए, आप बोलो कि सर रेज्यूमे बना देंगे हम लोग अभी से, वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. ठीक है? वो भी है, वो भी कर सकते हैं कि सीक्वल पावर बीआई कंप्लीट होने के बाद वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रेज्यूमे. आपका रेज्यूमे बन जाएगा, फिर आप डिफरेंट पोर्टल्स में आप अपलोड करके यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटीज. अपने पास भी कुछ रेफरेंसेस आता है तो वी कैन रेफर यू, बट आपको थोड़ा सिंसियरली करना पड़ेगा. आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो 3 months में. गौतम इज आस्किंग प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट अरेंज करिबो की? तो बेसिकली सी गौतम कि आमे जहाँ भी कोर्सेज माने असाइनमेंट दिया जाउची, योर अटेंडेंस, ओके, अटेंडेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट्स, एरा सब जदि तमे ठीक से टाइम से कंप्लीट करछो, देन डेफिनेटली इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू अरेंज यू द इंटरव्यू कॉल्स. विदाउट डूइंग दिस देन इट इज ए प्रॉब्लम. कहीं ना आमे जहाँ सांगे रिप्लेसमेंट पार्टनर्स अच्छु, सेतले एनी रिक्वायरमेंट जेतले आसुची, आमे जदि तुमको पठेबो फॉर एग्जांपल एंड यू आर नॉट रेडी, then it is a bad image for us.
Okay, so once you do the requisites, everything you are ready, then definitely institute is going to help you with the placement. Yeah, we have some placement partners, but again that is the problem. I see sometimes na कि सेमानकर कोन data analyst role थिबो SAP role थिबो and we are sending them and people are not opening their mouth there. Then they are coming us and scolding us कि why you are sending people who are not at all opening their mouths. Theta again ଆମ ପାଇଁ problem, right? So now we have decided that internally we are going to evaluate first and then we are going to send you for the final round. ଏବେ ଆମେ ଡେଲଏଟ୍ ରେ PwC ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କୁ ପଠେଇଥିଲୁ ଡେଟାରେ ଆଉ IBM ରେ ଦି ଜଣକୁ ପଠେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ବଟ୍ ଯୋଉ ଡେଲଏଟ୍ ରେ ଆଉ PwC ରେ ପଠେଇଥିଲୁ SAP ରେ ସେମାନେ କେବଳ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ସେଟା वी कांट हेल्प राइट ତମେ ଯଦି ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଯେମିତି ଆଜି ବହୁତ ଜଣ ପାଠି ହିଁ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ ସେମିତି କେମିତି ହବ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଶିଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଓପନ୍ ୟୁର ମାଉଥ ଦେନ୍ ହାଉ ଉଡ୍ ଦେ नो दैट यू नो दिस मच ठीक है तो कम्युनिकेशन को साइड एबे एबे इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ए क्लास रे भी तमे सार इंग्लिश रे आ हिंदी रे पढेबे यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस तम पे फ्री सॉफ्ट स्किल सेशन भलिया 6 मास इंग्लिश सुनिबो माने जहार जहा प्रॉब्लम थिबो ट्राई टू आस्क केही एटी केही जज करिया को नाहंती राइट तुमको बिंदास जहा क्वेश्चन पचरा कथा पचरा सी जो को माने आंसर दियंतिनी जो मान को नॉलेज न थाए जो माने इंडस्ट्री काम कर न थाए तमे गोटे कॉलेज रे क्वेश्चन पचर से कहउछन आज नहीं काली बाबू आसे काली आंसर देबी बट एठी ना तुम बिंदास जहा तुम माइंड रे जेमते दीपक हैज आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस and you most of you are kept silent right so सेमती And I am 100% sure गौतम जो क्वेश्चन पचारले समस्त को माइंड रे से क्वेश्चन थिबो बट केही पचारले नै समस्त को माइंड रे से क्वेश्चन थिबो कि प्लेसमेंट दबो कि नहीं बट केही पचारला नै काहे कि पचारला नै You should ask that. No, whatever I will say, whatever Shankar sir say is not related to you. तुमको जोटा पचारियार अछि सेटा पचारिया कथा. आंसर कोटा मिलियो कोनटा नहीं सेटा it is a different story. Right? So whatever you are feeling, you should ask it. I think Manish asked related to AI. That is also a very valid question. Everywhere AI is there. So is it really helpful or not? एक्चुअली आज का सबुठ बड़ प्रोब्लेम होची कोन देखो आज माने 85% इंडियन कॉलेजेस रे जो माने पढुचंती परदिन गोटे IBM बार करचे गोटे कैपजेमिनी एम सब बहुत सारा सर्वे रे भी आसुची 85% स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल माने इवन भलो भलो बड़ बड़ ब्रांड रे पिला पाठ पढी के भी स्पेंडिंग 30 लाख 40 लाख स्पेंड करी भी बेकार बसी चंदी हला काहे कि ना से माने कॉलेज रे से प्रैक्टिकल स्किल टा मिलुनी एबे सार जति जिंस तुमको कहिले जति आज जति इनसाइट देले तुम 4 वर्ष इंजीनियरिंग कर देलो 3 वर्ष BCA कर देलो 2 वर्ष MCA एकेडमिक कर तुम एतिक जिंस सुनी ही नथिबो आज जति सुनिथिबो आई एम श्योर काहे कि ना सार मोर 20 इयर्स रे एक्सपीरियंस अछि सार कर अराउंड 13 14 इयर्स रे एक्सपीरियंस अछि से जति जिंस आज शेयर करथिबे 4 वर्ष एकेडमिक रे तुम से जिंस केही कहिबेनी कारण से एक्सपोजर तुम खाली कॉलेज जाउ जस्ट फॉर ए सर्टिफिकेट से एक्सपोजर से नाही ना से करि नाहंती ना ओके सेमाने एकेडमिक पॉइंट ठीक अछि बट तम काम होछि तुमको साइड बाय साइड स्किल्स बिल्ड करियर अछि काहे कि ना कॉलेज माने धीरे धीरे कंपनीज माने कहलेनी कि हमें कॉलेज रू भी हायरिंग बंद कर देबो हमें फ्रेशर्स हायरिंग करबो ना हमें सेही फ्रेशर को हायर करबो जहां पाखरे इनफ पोटेंशियल अछि स्किल अछि माने निजु को से अपग्रेड करूछि विथ लॉट ऑफ AI डेटा जेएनआई रिलेटेड स्किल्स हे गला SAP हे गला जावा हे गला जहां मार्केट रे ट्रेंडिंग अछि से यदि निजु को अपग्रेड करूछि अपस्किल करूछि सेही पिला को हायर करबो हमको कॉलेज रे मास हायरिंग करबुनु आउ तांको कि 6 मास वर्ष ट्रेनिंग दे परिबुनु बिकॉज़ समस्त को दरकार पूरा एकदम माने एक्सपर्ट रिसोर्सेस जेंति सर कोन कि फिनिश्ड प्रोडक्ट एवरीवन इज लुकिंग फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट आज मु तुमको हायर करले काली नै कि काम करेबी तुमको मो पाखरे एते बजेट नै कि मु वर्ष वर्ष धरि के आगुर जेंति होतला आम टाइम रे 2 वर्ष ट्रेनिंग वर्षे ट्रेनिंग पिला वर्षे ट्रेनिंग रे थिबे वर्षे बेंच रे रहि कि चा कॉफी पी के कैंटीन रे बुली के एन्जॉय करथु एबे नै एबे समस्त को दरकार कॉस्ट कटिंग हला कि कॉस्ट कटिंग माने डेफिनेटली तमे डे 1 रु प्रोडक्टिव होबा दरकार आ डे 1 रु केतेबेले प्रोडक्टिव होबो जेतेबेले तमे एक्चुअली स्किल्स एक्वायर करथबो निज आडू 6 मास वर्षे ट्रेंड हेतिबो आ कॉलेज रु पढी के तमे भूली जाओ कॉलेज खाली डिग्री दे देला सर्टिफिकेट दे देला दैट्स इनफ कॉलेज रु तमे केबे इंडस्ट्री रेडी हेई परिबोनी आई एम डैम श्योर अबाउट दैट केते भी भलो कॉलेज हो से रेवेन्सा हो बीजेपी हो एनी गुड कॉलेज एनी रिनाउंड कॉलेज तमे को कॉलेज इंडस्ट्री रेडी करिवनी कॉलेज तुमको गोटे भलो परसेंटेज भलो से प्रिपेयर करला एकेडमिक यू विल गेट 90% 9 CGPA मे बी सर्टिफिकेट इशू मिलिबो बट प्रीतम रो गोटे क्वेश्चन अछि कि तांकर मे 8 रु मे 16 जे एग्जाम अछि ओके सो ही वांट्स टू जॉइन बट 8 रु 16 जे एग्जाम अछि सो मे बी वी विल टॉक टू हिम पर्सनली ओके तांको टिके पर्सनली कॉल करके वी विल टॉक टू प्रीतम
And then another question, Gautam. Gautam, you are asking question, but why you are not vocal? તમે verbally કાંઈ પચારનો. Can I understand that one? I will answer you the question which you are asking, but તમે verbally કાંઈ પચારનો. What is the issue? ସାର୍ ସ୍ୟାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ପଚାରୁଥିଲି ସାର୍। ହଁ ସେଇଟା ଏକା ଯେ ତମେ verbally କାହିଁ ପଚାରୁନ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ମିଟିଂସରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବା we have to talk verbally, okay? so ଆମେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତମେ verbally ପଚାର, okay? I am not saying କି ମେସେଜ କର ନାହିଁ ବୋଲି, ମେସେଜ କରିପାରିବ, that is fine, but if you talk verbally ନା then it is good for you, okay? तो तमर ଓକେ क्वेश्चन है कि मिनिमम सैलरी कौन है ही पारे, इट ऑल डिपेंड्स यदि तुम ऑलरेडी कोठी जॉब करूच एंड यू आर गेटिंग सम पैकेज एंड ऑल केते 2 lakhs की 3 lakhs जहाँ भी मिलुची, सो ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल गेट ए हाइक 30 40 50%। यदि तुम ऑलरेडी 5-6 lakhs रो पैकेज अछि मे बी 30% ही मिलियो। यदि तुम 2-3 lakhs भीतर अछि देन मे बी 50-60% हाइक मिली पारे। जे तुम जॉब ऑफ किछि करूनो एबे ही तुम प्लान करछो देन मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5-6 lakhs, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ओके? एबे ସାର୍ रिसेंटली ମୋର ଟିକେ କ୍ୟାରିୟର हाँ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି हाँ तो ସାର୍? से कैरियर गैप को हमें फिल करिया, ओके? हमें कैरियर केते गैप अछि? 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସାର୍। हाँ राइट, वेरी गुड। तो हमें से 4 वर्ष को फिल करिया, ओके? देयर इज अ डिफरेंट वे। हमें सेटा को अलगा सर्टिफिकेट देखे कि से 4 वर्ष फिल करके हमें कौन देखेबा कि ये 4 वर्ष तुम डेटा एनालिटिक्स फील्ड रे ही अच्छो। 4 years you are working in the field of data analyst एमिति देखेबा। You will not show that कि तमे कौन गैप अछि बोले हमें देखेबा नहीं, ଆଚ୍ଛା ओके? ता ପାଇଁ जो डॉक्यूमेंटेशन जो जोरा को अछि सेटा हमें करे परिया ରେ विशाल କଥା से कॉल ହବା करिया। ଆମେ କଥା हाँ ହବା ଏଇଟା। पर्सनली तुमको कथा हेबे, ठीक है? ଓକେ ଠିକ୍ राइट। ଅଛି। एनी दीज आर ऑल वैलिड क्वेश्चंस। एरा सब तुम स्टार्टिंग रो पचारे थिला, राइट? एनी अदर क्वेश्चंस? नो? ओके देन सर क्लोज करिए ना, एनीथिंग एल्स? ନାଇଁ ସାର୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସାର୍ କ୍ଲୋଜ କରିବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ तुम ନାହିଁ। बैकग्राउंड विषय तो टिके कहि दियंतु, दे विल आल्सो गेट लिटिल कॉन्फिडेंस। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ଦେଖିବେ WhatsApp ରେ, ଆଇ వుଡ୍ ହାଭ୍ शेयर्ड। ना ना इट इज नॉट देयर। लेट मी ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ श्योर ଥିବ। ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍, ଲେଟ୍ मी ଚେକ୍। वर्बली कहि दियंतु, मे बी इन द नेक्स्ट सेशन वी विल शो देम। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ हां ଡନ୍। हां ପିଲା ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଗେସ୍ କରିବାକୁ କହିବା, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ କରିବେନି। I have sent. We can stop the recording, sir. हाँ, I will stop it.